Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am continuing the revision of your chapter 7 of Lifelines of National Economy. This is the chapter 7 of your geography, and as you all know that in this chapter we have to be learn about the various means of transport, as these means of transport or communication are very important for the development of the country. So lifeline, that's why these are known as the lifeline of the national economy. What is the meaning of lifeline? That provide a लाइफ टू द नेचर, जो नेचर की कंट्री की नेशन की लाइफ को बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि वो लाइफ को इंक्रीज कर रहे हैं. देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. क्या महत्व है ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशन का? As we all know that all the goods and services are supply to us because of means of transportation. अगर हमारे पास means of transportation नहीं होंगी तो हमारे पास goods नहीं available हो पाएंगे, ठीक है. और as technology also helps to transfer the things within the country or in the states. Okay, means of transportation carry move people from one place to another. ठीक है. सो वी कैन से दैट नाउ टूडेज वर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अ रियली द लाइफ लाइन्स. द होल development of the country is depend on these resources, on these means of transportation. Okay, let us read about the various means of transport. As we know, in the various means of transport, we first of all we have land transport, then water transport, and then air transport. First is land transport. Land means roadways, railways, and pipelines. Water, we have two, inland and overseas. Air में we have two, one is domestic and second is international. In domestic we divide the public transport and the private airlines. Okay, so this is the means of transport. The first of all we will discuss the land transport, and under the land transport the very first mean of transport is roadways. Now roadways is the very important means of transport, or we can say provide us the very important means of transport. Roadways, India has one of the largest road network in the world. इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स हैं, ठीक है. एंड रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट ए वेरी फास्ट पेस. आउट स्टिल डेंसिटी एट रोड्स इज लो. आज के टाइम की अगर हम बात करें तो रोड्स एक फास्ट रेट पर कंस्ट्रक्टेड होती जा रही हैं, इंक्रीज होती जा रही हैं, ठीक है. एंड दे बिल्ड. अब हम रोड्स को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, या हम क्यों एक लार्ज स्केल पर रोड्स को बिल्ड कर रहे हैं? बिकॉज दे आर हेल्प्स टू मेंटेन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन ईजिली. और दूसरी बात, हम रोड्स को ईजिली बिल्ड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होती है रोड्स की, दैट इज़ very is low as compared to the other means of transport like railways. And main thing that we can construct roads at all type of relief, or we can say in that areas also where the railways is difficult to be laid down, ठीक है. roads are very important mean of transport as it is helps to transport the goods at a very short distances. Here we have some advantages of road transport. हम कुछ road transport की advantages को read करेंगे. Here we have all the, just a minute, here this all these are the advantages हैं ये हमारे पास of the advantages of, just a minute,
एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज। ठीक है, ये हमारे पास सारी की सारी एडवांटेजेस हैं। अब इसमें सबसे पहली एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज है जो हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट की, दैट दिस इज इकोनॉमिकली गुड और few persons and relatively smaller amount of goods over short distances. इकोनॉमिकली हम जो कुछ लोगों को अगर हमें ट्रांसफ़र करना है और स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स को ट्रांसफ़र करना है तो रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सेकेंडली, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द रोड ट्रांसपोर्ट. हमारा एग्रीकल्चर भी एक्सपेंड हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. बिकॉज ऑफ रोड्स वी कैन टेक द रॉ मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. मतलब एग्रीकल्चर जो हम खेतों में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इंडस्ट्रीज तक लेके जाने में हमारी मेन हेल्प कौन कर रहा है? रोड्स कर रही हैं. ठीक है. सेकेंडली, इट ऑल्सो provide us door-to-door services. The cost of loading and unloading is much lower. Fifth one, road transport is also used as a feeder to other mode of transport. Feeder है. Feeder कैसे है? If we want to go to railway station, then what we want? We take first we take the road, use the road transport. हम road transport को use करेंगे, move to the railway station. If we want to airport, then we also use the road transport first. ठीक है. तो ये एक फीडर है अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में. ठीक है. लिखा भी हुआ है, इट इज़ अ लिंक बिटवीन द रेलवे स्टेशंस, एयर एंड सी पोर्ट्स. रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ द मेरिट ऑफ ऑफरिंग पर्सनल सर्विस टू. रोड सिस्टम फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स अक्रॉस डिफरेंट एरियाज. तो पेरिशेबल गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है. सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रोड्स. प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले, रोड नेटवर्क इज़ इनएडिक्वेट इन इंडिया. अदर कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली चलें तो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा इनएडिक्वेट है. कंडीशन ऑफ रोड बहुत पुअर है. समटाइम हमारे पास अनमेटल्ड रोड्स बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़. अनमेटल्ड जिसे हम कच्ची सड़क कहते हैं, कच्चा रोड कहते हैं. ठीक है. देयर आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज़. येस, आर रोड्स आर वेरी मच कंजस्टेड. मोस्ट ऑफ द हाईवेज लैक साइड एमिनिटीज़. बहुत सारे हाईवेज ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो इम्पॉर्टेंट एमिनिटीज़ हैं वो नहीं है, लाइक टेलीफोन्स, एमरजेंसी हेल्थ सर्विस, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा. ठीक है. एंड द वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग because of our roads is the poor maintenance of roads. हमारी roads की maintenance जो है वो बहुत poor है. हमें बहुत जगह जो जब हम traveling कर रहे होते हैं तो roads जो है वो टूटी फूटी मिलती हैं. It means the poor maintenance. So these are the problems of the road transport. Now come on the next mean of transport, that is, I am telling you about the next topic of roads. Here the classification of roads. अब हमने रोड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? कैपेसिटी के आधार पर वी डिवाइडेड दिस इनटू 6 पार्ट्स. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स. And on the basis of material, we classified the roads into 2 parts, metalled and unmetalled. Okay, so let us read first the classification of roads on the basis of capacity or significance. First is golden quadrilateral super highways, GQSH, golden quadrilateral super highways. These are the important roads that connect the major cities of the country. कंट्री के इम्पॉर्टेंट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर. द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई बाय 6 लेन सुपर हाईवेज. ओके. इसके अलावा हमारे पास जो सुपर हाईवेज हैं उसमें है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर,
linking Srinagar, Kanyakumari, east-west corridor connecting Silchar and Porbandar. इसके अलावा देखो दो कॉरिडोर्स हैं, एक तो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि श्रीनगर और कन्याकुमारी को अटैच कर रहा है, और दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि सिलीचर और पोरबंदर को अटैच कर रहा है. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस. ठीक है, एंड दिस गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट type of road is national highways. These are linking the extreme part of the country. Primary roads हैं maintained by CPWD. ठीक है, नेशनल हाईवेज में हमने अलग अलग नेशनल हाईवेज हैं, बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं विद इन द कंट्री. जो फर्स्ट नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग एंड इट इज़ इन फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर. ओके, तो दिस इज़ अबाउट आर नेशनल हाईवेज. Next is state highways. These are the roads that linking the state capital. State की capital को link करते हैं district headquarters से. ठीक है, और it is also maintained by state public works department. Okay. Next type of roads is district roads जो कि district headquarters को other places के साथ connect करते हैं and this is maintained by जिला परिषद. The next one is other और rural roads. Rural roads वो हैं जो कि गाँव और शहरों को आपस में लिंक करती हैं, और ये जो रोड्स हैं these are maintained by प्रधानमंत्री सड़क योजना. ओके, देर आर मैनी अनमेटल्ड रोड ऑल्सो इन दिस अदर रोड्स में हमारे पास बहुत सारी अनमेटल्ड रोड्स हैं. लास्ट टाइप ऑफ रोड इज़ बॉर्डर रोड्स, एंड बॉर्डर रोड्स आर द रोड्स दैट इज़ अंडरटेकिंग बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. It construct the roads at the border areas of the country, and these are very much helpful for maintaining the defense purpose. Defense purpose से border roads बहुत important है, and this was established in 1960. BRO जो 1960 में establish की गई थी. ठीक है, and these also maintain a very important roads of the country. Okay, चलिए, now come on the next, that is रोड्स दैट आर बेस्ड ऑन मटीरियल के बेस पर हमारे पास कौन सी रोड्स है? वन इज़ मेटल रोड, सेकंड इज़ अनमेटल रोड्स. मेटल रोड्स कौन सी हैं? दैट इज़ जो कि पक्की सड़कें हैं, सीमेंट से कंक्रीट से जो बनी हुई हैं, उन्हें हम मेटल रोड्स कहते हैं, और जो कच्ची सड़कें हैं वो अनमेटल रोड्स हैं. ठीक है, और मेन जो डिफरेंस है दोनों के बीच में कि मेटल रोड्स ऑल वेदर बेनिफिट हैं, बट जो अनमेटल रोड्स हैं वो रेनी सीजन में हम यूज़ नहीं कर पाते, एंड स्पेशली फॉर द हैवी व्हीकल्स. ओके, नाउ व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर फेस बाय आवर रोड ट्रांसपोर्ट. मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉब्लम्स मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऊपर जब हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े थी, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हमारे पास लैक रोड्स हैं, कंजस्टेड रोड्स हैं, मेंटेनेंस पुअर है. सो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ रेलवे. Railway is the another mean of transport, and railway is also one of the major means of transport the country like India में जहाँ पर number of passengers और population is very much high. पॉपुलेशन हाई है तो हमारे पास रेलवे जो है एक बेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाता है. रेलवे इज़ ऑल्सो बेस्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग द हैवी गुड्स और लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, तो मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़, बिजनेस, पिलिग्रिमेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इन सब में हमारी हेल्प करता है. लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. मोबाइल सर्विस से फार ऑफ प्लेसेस भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एंड इनएक्सपेंसिव सर्विस है, बट इन्हांस द स्पेशली डोमेस्टिक ट्रेड. और बिकॉज ऑफ रेलवे हमारी जो डोमेस्टिक ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हुआ है. टूरिज़्म को सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है. 6% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है हमारी रेलवे. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज पब्लिक अंडरटेकिंग. रेलवे हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग है, मीन्स बाय द गवर्नमेंट.
हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट रेलवे में, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। आज के टाइम में हमारी रेलवे में कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की हैं। कोंकण अलॉन्ग विद वेस्ट कोस्ट फैसिलिटीज़, मूवमेंट ऑफ पैसेंजर गुड्स टू इकोनॉमिक रीजंस, बेसिक एमिनिटीज़ को रेलवे में इंक्रीज़ किया है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया है रेलवेज़ का, कंप्यूटराइजेशन भी रेलवे का हो गया है आज के टाइम में, ठीक है। और इसके अलावा सर्विसेज को बेटर करने की कोशिश की है, स्पीड ट्रेन्स की इंक्रीज़ की है। बट यहाँ पर आ जाएगा मेजर प्रॉब्लम्स जो कि हम रेलवेज़ में फेस कर रहे हैं। वन इज़ बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जो विदाउट टिकट रेलवे में ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। सेकंड मेन प्रॉब्लम है रेलवे प्रॉपर्टी की लोग केयर नहीं करते हैं, ठीक है। डिलेज आर वेरी मच कॉमन इन द रेलवे, पुलिंग ऑफ चेन अननेसेसरली इज़ ऑल्सो वेरी मच प्रॉब्लम्स फॉर द रेलवे, ठीक है। एक्सीडेंट्स बड़े कॉमन होते हैं रेलवे में, बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं बट फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ टोपोग्राफी। जैसे हिली एरियाज़ में हम रेलवे इजीली से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मेंटेनेंस इसकी भी पुअर है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू एयरवेज, इसके जो एयर टफ कंपटीशन, एयर जो है वो इसको एक टफ कंपटीशन दे रही है सिर्फ फेयर की वजह से। मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए लोग एयरवेज को भी प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू रेलवे, बट वहाँ पर फेयर एक डिफरेंस आ जाता है कि एयरवेज में जो फेयर है, टिकट्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, ठीक है। अगर हम रेलवे का कंपैरिजन रोडवेज से करें तो रोडवेज बेटर है ऑल टेरेन में। फीडर सर्विसेज हमें रोडवेज प्रोवाइड करवाती हैं, रेलवे नहीं करवाती। डोर टू डोर सर्विसेज भी हमें रोडवेज प्रोवाइड करवाती है, रेलवे नहीं करती। फास्टर है एज़ कम्पेयर टू रेलवे, ठीक है। ऑल इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इन ऑल टाइप ऑफ वेदर में भी धुंध पड़ रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, इसमें रेलवे रुक जाती है बट रोडवेज नहीं रुकती, ठीक है। फॉगी वेदर में ट्रेन्स डिले होती हैं, नॉट buses, okay. Next mean of transport is pipeline, but today I am not discussing this will be discussed in the next video, okay. Thank you.